Yes, good afternoon, all of you. Because in second chapter, we have a study about the operating system. Okay, beta, GUI operating system and desktop management. Okay, students. Now we are going to start our class. Yes, beta. In this chapter, we will learn about the yes, beta. We will learn about the operating system. What is the operating system, beta? What is operating system? Uh, yes, beta. Vidit, voice is coming, beta. Yes, sir. Okay, beta. Yes, beta. Now we will learn about the at first what is the meaning of the window operating system. Okay, beta. And then we will learn about the desktop. Okay. Yes, Peter. The topic is given. Operating system. Beta. Yes. What is operating system? What is the meaning of the operating system? In your chapter name is with a window operating system. Okay, Beta. First, you have to know about the what is the operating system. Why do we need an operating system, Beta? Why do we need an operating system? The operating system work between hardware and user. Beta. Operating system is a system software. First point about the operating system is it is a window based operating system. Window, yes, it is a first. It works intermediate like a
an interface is between user user and hardware. बेटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वो क्या है कि एक रिलेशंस बनाता है, और रिलेशन किसके बीच में बना रहा है बेटा? यूजर मीन्स वी आर, एंड हार्डवेयर मीन्स द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। वो आपका इनपुट भी हो सकता है, वो आपका आउटपुट डिवाइस भी हो सकते हैं, वो मेमोरी भी हो सकते हैं। बेटा जस्ट चेक योर चैप्टर नंबर सेकंड बेटा, chapter number second. Have you opened, all students, chapter number second? Okay, beta. And we are going to start with the beginning of this chapters. Okay, GUI operating system and desktop management. Okay, beta. तो यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। जो टॉपिक गिवन है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अभी टॉपिक के अंदर नहीं जा रहे हैं हम बेटा, पहले टॉपिक जो चैप्टर्स है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके बेटा। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बेटा? इट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि और इट एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। बेटा दोनों डेफिनेशन सही है आपकी, कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें जो हमारा पर्पस है वो ये सॉल्व करता है कि एक यूजर को परमिशन प्रोवाइड करता है कि वो हार्डवेयर के साथ इजी वर्क में अपना कोऑपरेट कर सके। बेटा जैसे हम आपने देखा होगा कि हम जब टीवी ऑन करते हैं, जब हम टीवी ऑन करते हैं तो बेटा क्या होता है कि हम पूरा जो जो टीवी ऑपरेट होता है बेटा, टीवी हमारा किससे ऑपरेट होता है? टीवी हमारे रिमोट से ऑपरेट होता है। तो रिमोट की तरह ही आपका एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा, जो सारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का वर्क करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बेटा? आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है जो मैनेज करता है कंपोनेंट्स को, और इट एनेबल अस टू यूजर टू वर्क विद द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। मीन्स क्या करता है ये क्या करता है? इट इनेबल द यूजर टू वर्क विद द कंपोनेंट्स। थर्ड डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हो बेटा। आप एक और डेफिनेशन इसकी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? It enable us to work with, it enable us to work with components. You can note down beta, components of a computer। बेटा कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब के साथ ये क्या करता है? ये हमें इनेबल करता है जिससे कि हम इजी वे में उसके साथ काम कर सकें। With components of a computer।
Yes, बेटा. Yes, Vidhi. Vidhi, screen is showing, बेटा. Vidhi, Yes, sir. screen is showing, बेटा. Yes. Yes, and better note down the main points. First is what is the operating system? There are three definitions of the operating system. All are the same, but it's a main difference. First definition is it works like an interface between user and hardware, and or it establishes a relationship between user and hardware. Okay, beta. And third is it enables us to work with components of a computer, beta. All are the right definitions. But beta, yes, main examples of the operating system. The examples of the operating systems. आपको मैं बता रहा हूँ how many examples of the operating system. ये नोट करें बेटा आप. Examples of operating system. First example is जो आपके टॉपिक है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. तो फर्स्ट एग्जांपल आपकी बुक में ही है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके बेटा. विंडो इज द operating system. Of which type of operating system? GUI based operating system. What is the meaning of the GUI? Yes, विंडो क्या है बेटा? What is विंडो? विंडो है GUI based operating system. GUI based operating system. Operating system. GUI based operating system. बेटा what is the stand for GUI? GUI means graphical user interface. बेटा विंडो जो आपका विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो इस पे वर्क करना बहुत इजी होता है बेटा. पूरा कंप्लीटली क्या है? कंप्लीटली विंडो इज अ ग्राफिक बेस्ड बेटा. ग्राफिक बेस्ड मीन्स अब आप जैसे मोबाइल ऑपरेट करते हो बेटा, तो मोबाइल पे आप व्हाट्सएप का साइन देखते हो, दैट्स कॉल्ड आइकन ना बेटा. देखो यहाँ पर आइकन में आपको डिस्प्ले करवा रहा हूँ. ये आप देख रहे हो माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, वीएलसी, एडोब रीडर, ऑल आर द आइकन बेटा. और ये पूरी कंप्लीट आपकी क्या है बेटा? कंप्लीट आप स्क्रीन शो हो रही है. दैट्स कॉल्ड बेटा डेस्कटॉप. दैट्स कॉल्ड डेस्कटॉप बेटा. और ये जो आपके साइन बने हुए हैं माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, जूम, ऑल आर द आइकन. आइकॉन्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आइकॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं, आइकॉन्स आपको बताते हैं कि ये हमारी जो प्रोग्राम्स है उस प्रोग्राम से रिलेटेड शॉर्टकट्स बने हुए होते हैं. और वो डिस्प्ले करते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पर डायरेक्ट हम उस प्रोग्राम में डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं इस पर डबल क्लिक करके. जैसे ये आइकन बना हुआ है माई कंप्यूटर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये माई कंप्यूटर के अंदर जा सकता हूँ, जो कि हमारे लोकेशन से हमारी सभी लोकेशन है वो इसी में डिस्प्ले होती है बेटा. देखो ये आइकन पर क्लिक किया मैंने तो ये एक सेक्शन मेरे पास डिस्प्ले हो गया बेटा. ओके बेटा, स्क्रीन आप नोट कर रहे हो ना बेटा? तो ये सभी स्किन है. ये रिसाइकल बिन है जो डस्टबिन लाइक अ डस्टबिन मींस वी कैन रिमूव द अननेसेसरी फाइल. if you want to remove the unnecessary file, it will be stored in a recycle bin for the temporary. ओके. और आप इसे वापस भी रिस्टोर कर सकते हो आपके सिस्टम में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा. तो ये आपका पूरा कंप्लीटली डेस्कटॉप है बेटा. और हम किसकी बात कर रहे थे? आइकन्स आपको बता दिए मैंने, आपको डेस्कटॉप मैंने बता दिया. मैं आपको बता रहा था कि जीओआई बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर वर्क करना इजी क्यों होता है बेटा? उस पर वर्क करना इजी होता है बेटा. हम आपके बुक के टॉपिक पे जाएंगे, पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लें. टॉपिक को एक्सप्लेन करना जरूरी है जिससे कि आपकी समझ में आ जाए बेटा. whenever you start your computer or laptop, Windows 7, Windows 10 and Windows XP, all are operating system display there. आपके लिखा हुआ आता है. जैसे आप मोबाइल है, मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है बेटा? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं हम?
यस, आपने नाम सुना है ना, आपके कोई भी कहता है यार मेरे पास तो एंड्रॉइड मोबाइल है ना, एंड्रॉइड मोबाइल है, तो एंड्रॉइड क्या होता है बेटा, एंड्रॉइड इज ऑल्सो ए ऑपरेटिंग सिस्टम इन मोबाइल वी आर यूजिंग इन मोबाइल, ओके, वी आर यूजिंग, सॉरी, वी आर यूजिंग इन मोबाइल। बेटा जनरली आपने किसी को बात करते हुए भी सुना होगा, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, यार मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है, या तुम्हारे पास एंड्रॉइड मोबाइल है या नहीं। तो बेटा एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हुए जो मोबाइल में हम यूज कर रहे हैं, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम यदि हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में, यदि मोबाइल में किसी भी तरीके का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक अ ब्लैंक बॉक्स विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके बेटा, आर कंप्यूटर और लैपटॉप आर लाइक अ ब्लैंक बॉक्स, कुछ भी नहीं है बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उसमें किसी भी तरीके का वर्किंग नहीं होगा। If you want to do work with computer, with laptop, you have to install at first operating system। और operating system के examples मैं आपको बता रहा हूँ। एक operating system आप नोट करो, लिनक्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप नोट करो बेटा, यूनिक्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप नोट करो जो इंडिया के थ्रू आपका डेवलप है, वो। ओके बेटा, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, इसकी फुल फॉर्म होती है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ओके बेटा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपके बताया गया है कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जीयूआई बेस्ड है, और एक फुल फॉर्म जीयूआई बेस्ड मींस आप एक दो फुल फॉर्म लिखें बेटा, जीयूआई तभी समझ में आएगा आपका। एक तो आप लिखे जीयूआई, ग्राफिकल, सॉरी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके बेटा, एंड सेकंड फुल फॉर्म भी आप नोट करें बेटा, सीयूआई। CUI stand for character user interface, graphical user interface and character user interface। ओके बेटा, तो बेटा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडो, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, वो क्या है बेटा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा ग्राफिक बेस है बेटा। विंडो हमारा क्या है बेटा, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा जीयूआई पे वर्क करना इजी होता है, क्योंकि हमें पिक्चर्स, इमेजेस सब कुछ शो होती हैं। डेस्कटॉप पे भी आपकी शो हो रही है, आप इनर साइड में, इनर साइड में आपके वर्ड मैंने ओपन कर रखा है आपकी राइटिंग के लिए। तो यहाँ पर भी देखो सिंपल आपके ऐसे ऑप्शंस हैं आपके, जिसको देख करके आप सेव कर सकते हो। जैसे ये आपके सेव के लिए है, ये बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, सुपर सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, अलाइनमेंट के लिए। ये आपको आइकन देखते ही, ऑप्शन देखते ही, आपको ग्राफिक देखते ही आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन किससे रिलेटेड है। तो इस पे वर्क करना बेटा इजी होता है, और वर्क करना इजी है मींस कोई ये ग्राफिक्स नहीं होते बेटा, तो आपको क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है हर चीज को। फाइल को सेव करना है, उसके लिए आपसे कह दिया जाए कि आपको फाइल सेव करनी है, 3-4 स्टेप आपको लर्न करनी होगी। तो बेटा इट इज वेरी टिपिकल टू लर्न, हमें लर्न करना क्या होता है बेटा, बहुत टिपिकल होता है ना। और हमें आप मोबाइल यूज करते हो बेटा, मोबाइल में आपके वीडियो का साइन होता है, व्हाट्सएप का आइकन होता है, यूट्यूब का आइकन होता है, उसको आप देखते ही तुरंत ओपन कर लेते हो। यूट्यूब ओपन करना है तो यूट्यूब के साइन पे क्लिक कर देते हैं, आइकन पे क्लिक कर देते हैं।
व्हाट्सएप ओपन करना है तो व्हाट्सएप के साइन पे ओपन कर देते हैं, वीडियो ओपन करना है तो वीडियो पे ओपन कर देते हैं, हमें कोई और यूज करना होता है तो हम उससे ओपन कर देते हैं बेटा। बट आपसे कह दिया जाए बेटा यूट्यूब को आप तभी ओपन कर सकते हो आपको जब 4 लाइन लिखनी पड़ेगी, आपको 4 लाइन के कमांड्स आपको देने पड़ेंगे, तो इट विल बी वेरी टिपिकल टू राइट ऑनलाइन कंपेयर टू GUI। सो GUI पे वर्क करना बहुत इजी होता है और CUI पे वर्क करना टिपिकल होता है। ओके बेटा, इसलिए CUI इस पे मैं बताता हूँ। CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखिए बेटा आप, इसमें होता है आपका MS DOS। MS DOS जो है आपका कौन सा है, CUI बेस्ड है बेटा, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है बेटा, ये CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके बेटा, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आपके यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक नेम और दे देते हैं MS DOS। यह हो गया आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक को वर्ड ओपन करेंगे हम, उसमें लिखेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके बेटा, ये आपको एक नॉर्मल वे में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है आप कर सकते हो और किस तरीके से हम जो है आपके ओपन कर सकते हैं, है ना। ये सब कुछ हमने अभी नोटिस किया कि किस तरीके से हम वो कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना इजी होता है। और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना इजी होता है, विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे, क्योंकि विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए हमें उस पर वर्क करना इजी होता है। यस बेटा, यही आपका चैप्टर है ना। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि ये देखो ये GUI लिखा हुआ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यही बताया आपको, ठीक है बेटा। और ये क्या करता है, ये देखो यहाँ पर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस और लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर, ये मैंने बता दिया बेटा। ओके बेटा, जैसे हमारा रिमोट जो होता है वो टीवी और हमारे बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है बेटा। यदि मेरे पास रिमोट है और रिमोट आपकी वर्किंग में नहीं है, तो क्या आप टीवी को एग्जीक्यूट कर पाओगे प्रॉपर वे में? इट इज नॉट पॉसिबल। ओके बेटा, तो यूजर मीन्स हम टीवी को देख रहे हैं और टीवी आपके कंट्रोल हो रही है आपके किससे, माउस से, सॉरी, टीवी कंट्रोल हो रही है आपके रिमोट से, तो रिमोट दोनों के बीच में क्या वर्किंग कर रहा है बेटा, इंटरफेस की तरह वर्किंग कर रहा है बेटा। नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा, हमारा टास्क बार चल रहा था बेटा, इसमें टॉपिक आपका टास्क बार। बेटा व्हाट इज द टास्क बार, व्हाट इज द टास्क बार? ये आपको शो हो रहा है बेटा, ये देखो मैं बताता हूँ। देखो टास्क बार ही मैंने ओपन कर रखा है, आपको एक ओपन कर रखा है, ये देखो बेटा ये लिखा हुआ है, ये आपके स्टार्ट बटन, तो ये हो गया बेटा, ये आपको नीचे भी दिख रहा है स्टार्ट बटन, स्टार्ट लिखा हुआ है इस पे बेटा। लोकेट कौन कौन सी आपकी टास्क बार कौन कौन सी होती है, टास्क बार आपके सबसे नीचे टास्क बार होती है, उसके ऊपर स्टेटस बार होती है। मैं पहले आपको कंप्लीटली और बार भी बता देता हूँ, मैं आपको अभी कंप्लीट आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये जो आपके है, ये कंप्लीटली कौन सी बार है बेटा, ये बार है आपकी टाइटल बार। ये आपके देखो यहाँ पर जो है आपके बेटा, आई विल टेक योर अटेंडेंस आफ्टर यस बिफोर द 5 मिनट्स बिफोर योर एंडिंग द क्लास। ओके बेटा,
ये जो है आपके ये टाइटल बार होती है, इसमें 3 बटन है। एक तो ये मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने पर क्या होगा, ये हमारा नीचे टास्क बार पर आ जाता है, देखो यहाँ पर आ गया ये। अब वापस इसे हम ओपन कर सकते हैं, ओपन हो गया। ये बेटा सेकंड बटन जो है आपका रिस्टोर और मैक्सिमाइज करने के लिए, देखो ये रिस्टोर हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ये देखो मैक्सिमाइज हो गया। इस बटन पर क्लिक करते ही हमारी स्क्रीन मैक्सिमाइज हो गई। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखो बेटा, इसको हम क्लोज करेंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा। ये सेकंड जो है बेटा, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस दिया हुआ वो मेनू बार होती है, और ये आपकी शॉर्टकट टूल बार होती है। अब हम आते हैं आपके टास्क बार पर, जो आपके सिलेबस में अभी गिवन है। ये बेटा ये टास्क बार होती है ना, जिसपे स्टार्ट लिखा हुआ होता है, ये स्टार्ट लिखा हुआ होता है, ये गूगल का साइन आ रहा है, ये जूम का साइन आ रहा है, ये वर्ड की फाइल का साइन आ रहा है, ये पीडीएफ का साइन। ये कंप्लीटली हमारी कौन सी होती है बेटा, टास्क बार होती है। जैसा कि आपकी ये पीडीएफ में देखो, आप पीडीएफ में भी बता रखा है कि ये जो होता है वो स्टार्ट बटन होता है, और ये आपकी एप्लीकेशन जो मैंने अभी ओपन कर रखी है, ये ओपन है ना, पीडीएफ ओपन हो रही है, तो ये एक्टिव एप्लीकेशंस होती है। ओके, ये देखो ये क्विक एक्सेस है, यहाँ से हम जनरली जैसे वर्ड मैंने मिनिमाइज में कर रखा है, तो ये क्विक एक्सेस बार है जिसपे हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखो स्पीकर ये सब स्पीकर, देखो स्पीकर यहाँ से कंट्रोल होता है, आपका स्पीकर यहाँ से कंट्रोल होता है। ओके, यहाँ पर आपके नेट वगैरह के लिए कनेक्टिविटी वाईफाई वगैरह करते हैं, हम यहाँ से करते हैं। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट आपकी क्या होती है बेटा, टास्क बार होती है। तो टास्क बार आप जो भी टास्क कर रहे हैं, टास्क में जो भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं बेटा, वो सारा कंट्रोल किससे होता है, टास्क बार पे। कोई एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाती है तो वो नीचे आ जाती है टास्क बार पर, उसको वापस हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन को एक्टिव बेस पे लेना है तो वो एक्टिव हम। Notifications area. This area contains the clock and other program icons which provide the status. बेटा यहाँ पर देखो, आप जो भी प्रोग्राम रनिंग होता है या स्पीकर होता है, वो सब कुछ आपके प्रोसेसिंग में शो होता है। देखो ये वाली चीज आप देख रहे हो, तो ठीक है, यहाँ पर क्लॉक वगैरह आपको शो हो रहे हैं, है ना। और कोई भी प्रोग्राम होता है, स्पीकर वगैरह ये शो हो रहे हैं। ये सब, ये वाली जो सेक्शंस है, वो सेक्शन क्या है आपका, नोटिफिकेशन एरिया है, जहाँ पर आपका बैटरी का भी शो होता है बेटा, है ना। बैटरी आपने शो कर रखी है, नेट आपका शो हो रहा है, स्पीकर शो हो रहा है, टाइम और डेट शो हो रही है। ये वाला सेक्शन जो है आपका नोटिफिकेशन एरिया है। ओके, आप नीचे आएंगे बेटा। In next class beta we will study about the how can we create our email id, how can we compose email id, and how what is the process for receiving and sending the mail. आपने पोस्टल टेस्ट आपके सेंड किए हैं, बट आपने अपने पेरेंट्स की ईमेल आईडी बनाई होगी। नेक्स्ट टाइम आप अपनी ईमेल आईडी बना करके पोस्टल टेस्ट आप सेंड करना। ओके बेटा, यहाँ पर देखो आपके क्विक लॉन्च बार provide an easy quick way to open the program. This the start button and the notification area. Here you can add commonly used internet explorer, word application, text। कहने का मतलब है बेटा, ये टास्क बार और आपका नोटिफिकेशन एरिया है। यहाँ पर आप देख लो मैंने मिनिमाइज कर रखा है, वर्ड पीडीएफ आपने मिनिमाइज कर रखी है। तो ये आप क्या कर सकते हो बेटा, इससे क्विकली अपन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक, जैसे मैंने यहाँ पर आपके गूगल क्रोम के लिए मुझे डेस्कटॉप पे नहीं जाना होता, मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। जैसे मुझे ये जूम मैंने आपके इसी बार पे मैंने ऐड कर रखा है, तो यहाँ पर ही मैं सब कुछ ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे रिमूव भी करना है तो मैं राइट क्लिक करूँगा और अनपिन कर दूंगा, तो ये प्रोग्राम मेरा क्या आ जाएगा बेटा, टास्क बार से हट जाएगा। लेकिन मुझे टास्क बार पर चाहिए, इसलिए मैं इसको टास्क बार पे ले सकता हूँ, है ना। तो किसी भी प्रोग्राम को हम टास्क बार पे भी ले सकते हैं और वो अनपिन भी टास्क बार से कर सकते हैं। ओके बेटा, अंडरस्टूड। किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स मैंने बता दिया कि किस तरीके से हम फॉलो करते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया। किसी को डाउट है बेटा?
बेटा एक सेकंड में आपकी अटेंडेंस एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ बेटा आपकी। प्रियांश कुमार, you have a questions? Yes बेटा, any doubt, any questions बेटा? Sir, my mother have email ID. यस बेटा, हम नेक्स्ट टाइम पे आपकी मदर की ईमेल आईडी है, बट हम अपनी ईमेल आईडी बनाएंगे नेक्स्ट टाइम पे, आपको सिखाएंगे किस तरह से मेल आईडी Which हम date बनाएंगे your period? इन नेक्स्ट। यस बेटा कार्तिक, यू हैव अ Sir, क्वेश्चन? Yes, beta. In next period, we will learn about the how can we create our own ID. Karthik, you have a question, beta? Sir, on which day you? Sir, which date your next class is? बेटा आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके पास लिंक आ जाएंगे, वो डे आपकी क्लास होगी बेटा, अपना मैम नोज वेरी वेल। यस कार्तिक बेटा, कार्तिक यू हैव अ क्वेश्चन? यस बेटा, आई एम टेकिंग द अटेंडेंस। बेटा जिसके भी आपके नाम मैं नोट कर रहा हूँ, उनमें जिसका भी नेम नहीं आया है वो मुझे बता देंगे बेटा। फर्स्ट इज प्रियांश। First is Priyansh. Second is Karthik. सर Yes बेटा। सर हम ये पूछ रहे थे, हमारी ईमेल आईडी है। आपकी बना रखी है आपने? यस सर। यस वेरी गुड बेटा। यस अलीजा। यस बेटा, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, जस्ट यू हैव टू रेज योर हैंड बेटा। अनिक। ओके आर्यन बेटा, जो भी आपको मैंने अभी नोट्स करवाए हैं वो नोट्स आपको लिखने हैं बेटा। ओके आपको सभी नोट्स आपकी कॉपी में आपको लिखने हैं। यस डिम्पल। डिम्पल। हर्षित। हर्षित। भव्य। बेटा जो भी आपके नेम आ रहे हैं वो रेज एंड करते जाएं बेटा। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बेटा, जो भी आपको मैंने करवाया है वो रिवीजन आपको करना है ना? ये बेटा हितार्थ। और इसको जो भी मैंने आपको बताया है अभी वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उसको रिवीजन कर लेना बेटा, है ना? यस कौस्तुभ। बेटा अपने नेम से लॉगिन किया करो, है ना? खुशी। कुणाल। जिसका भी नाम आ रहा है वो रेज एंड करते जाओ। हो सकता है आपने किसी और नेम से लॉगिन किया हो, तो आप मुझे बता दे किसी और नेम से लॉगिन है तो आपका। लक्षिता। यस बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? यू वांट टू से समथिंग? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जस्ट लेट मी चेक बेटा, जस्ट yes from my side voice is clear beta. Yes yes beta, सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। okay beta. Sir, Now Priyanshu, his voice is coming properly now? yes sir. Okay beta, just check your wire beta. सर हम तो नेटवर्क के सामने खड़े।
ओके बेटा, सर यस बेटा। ऋषि, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ऋषि बेटा अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा, सर, अभी मैं, अभी अटेंडेंस हो रही है, आपकी क्लास हो गई है बेटा। और नेक्स्ट क्लास में हम ईमेल आपको बनाना सिखाएंगे बेटा। ईमेल, हाउ कैन वी क्रिएट आवर ईमेल आईडी, हाउ कैन वी कंपोज, सब कुछ आपको बताएंगे बेटा। अभी आपकी अटेंडेंस हो रही है। शानवी, सर यस बेटा। सर पीडीएफ भेज देना इसका। मीटिंग ईमेल आईडी चेंज करनी पड़ेगी। नो बेटा, नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज सर योर कह रहे मेल हैं आईडी सर बेटा। दिखाएंगे ही ऐसे क्रिएट कर। सिखाएंगे हम किस तरह से बना सकते हैं बेटा। हैं? यस, सोमिल, सुहानी, आवाज आ रही है, ऐसे आवाज आ रही है सही। कैसे आ रही है सर, इतनी तेज बोल रहे हो सर। नेक्स्ट क्लास यस बेटा। सुहानी, then Tanuja and Vikas, and Jael. Yes बेटा, ये आपकी अटेंडेंस हो गई है बेटा। हाँ बेटा, आप क्वेश्चंस पुटअप करो, आप जो भी आपको पुटअप करने हैं। इसको क्वेश्चंस पुटअप करने हैं। चैट में मैं जा रहा हूँ बेटा, आपकी चैट को मैं चेक कर रहा हूँ। बेटा you have to note down it first. I will not send any type of PDF. Just you have to note down बेटा। मैंने आपको अभी स्क्रीन पे बताया है, पूरी कंप्लीट आपको बताया नोट्स। इस नोट्स को आपको एंड टू एंड आपको कॉपी में लिखना है बेटा। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है नोट करने में। आपको जितना मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ उतनी टाइम पे आपको वो चेक करना है ना बेटा। तो आपको पीडीएफ की क्या जरूरत है इसमें? पीडीएफ किसकी मांग रहे हो आप? बोर्ड पे जो मैंने पढ़ाया है बोर्ड पे, वो बोर्ड पे नोट करना है आपको। व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म, है ना। व्हाट इज द डेस्कटॉप, यही तो बताया बेटा मैंने अभी आपको। तो ये सब कुछ आपको वो करना है। आप क्यों नहीं कर पा रहे हो बेटा? जो भी पूछना है वो अभी पूछ लें, आप कंफर्म कर ले बेटा। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। यस ऑल स्टूडेंट्स। यस बेटा। विधि, yes, what your question? सर हमारा नाम तो है ही नहीं। Yes बेटा। विधि, यस सर। ओके। और किसका नहीं आया है? ऑलमोस्ट आ गए हैं सब। Yes बेटा। Any doubt, any questions? Just all students at first down your hands, then I will talk with you. जिसको भी आपको क्वेश्चन पुट अप करने हैं, you can raise your hand, but at first down your hands all of you. अब आप में से किसी को भी क्वेश्चन पुट अप करने हैं वो आप मुझसे पुट अप कर सकते हैं। कार्तिक, you want to ask the questions? Yes, Karthik. Down your hands. Anybody want to ask the questions? नो सर। बेटा डेस्ट आज स्टडी पॉइंट कौन कौन से थे बेटा? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो तीनों डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है वो सब कुछ आपको नोट करना ही है, तीनों डेफिनेशंस। ओके बेटा, ये तीनों डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है। सेकंड मैंने क्या बताया? एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज, एंड्रॉइड, लाइनक्स, यूनिक्स, बॉक्स, एमएस डॉस। एमएस डॉस कौन सा है बेटा? सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो कौन सा है? जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और आईएस फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एंड सीयूआई स्टैंड फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ओके बेटा। और मैंने आपको क्या बताया बेटा? डेस्कटॉप। व्हाट इज द डेस्कटॉप? डेस्कटॉप इज यस बेटा, व्हेनेवर you start your computer, the booting process will be displayed. Okay, in booting process system file will be checked, and after the processing of this checking of the system file, this screen will be displayed. That's called
डेस्कटॉप, ये कंप्लीट बेटा डेस्कटॉप है आपका। और ये जो माय कंप्यूटर लिखा हुआ है, रिसाइकल बिन लिखा हुआ है, जूम लिखा हुआ है, ये सब क्या है बेटा आइकन्स है। इनके ये शॉर्टकट के फॉर्म में है, जिस पे हम डबल क्लिक करके डायरेक्ट हम प्रोग्राम में एंट्री कर सकते हैं। बेटा ये जो स्टार्ट बटन लिखा हुआ है, ये पूरा क्या होता है बेटा टाइटल बार होता है आपका। मैंने बताया था कि इसमें देखें, हम चेक करें तो ये पूरा टाइटल बार है हमारा। और ये पेज 1 पेज 2 लिखा हुआ है, वर्ड 69 लिखा हुआ है, वो हमारा स्टेटस बार होता है। ओके बेटा। और नोटिफिकेशन एरिया कौन सा है बेटा, ये नोटिफिकेशन एरिया टाइम सबको लिखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अब इसमें कोई डाउट हो तो वो बता दीजिए बेटा। नाउ आई एम गोइंग टू लीव दिस क्लास। Okay, in next class we will learn about the how can we create our beta. Now I am going to leave this class. I have a next class, so I have to leave this class beta. Okay, bye, take care beta.